हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लेसन की शुरुआत करेंगे। लेसन को पूरा देखिएगा। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए, exempted income has no role in calculation of tax liability. Option B, exempted income like agriculture may be integrated with other income in order to determine tax. Option C, all exempted income are fully exempt for all SSCs. Option D, all type of incomes are exempt for trade unions. So friends, यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, exempted income like agriculture may be integrated with other income in order to determine tax. Question number 2. The donations received by electron trust will be exempt under section 13B if. Option A, the trust function in accordance with the rules made in the regard by CG. Option B, the trust distributes to political parties 95% of the aggregate donations received by during per year. Option C, the trust is approved by CBDT. Option D, all of the above. So friends, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3. Aman age 75 years, mortgage big property with housing finance company under reverse mortgage scheme. Company paid Aman rupees 25,000 per month during 2019-20. The amount. Option A, 50% of receipt will be taxable. Option B, 3 lakhs will be exempt. Option C, 3 lakhs will be taxable. Option D, none of the above. Aman age 75 years, mortgage big property with housing finance company under reverse mortgage scheme. Company paid Aman rupees 25,000 per month during 2019-20. The amount. So friends, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 lakhs will be exempt. Next question. Amount received under key man insurance policy is. Option A, 60% exempt under section 1010D. Option B, 50% exempt under section 1010D. Option C, fully exempt under section 1010D. Option D, not exempt. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, फुली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हो आप उसको कहीं नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन, डिविडेंड रिसीव्ड अंडर सेक्शन 222E इज. ऑप्शन ए, एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूरिंग 2019-20 अंडर सेक्शन 1034. Option B, exempt under section 1035. Option C, taxable. Option D, exempt from during 2018-19 under section 1034. ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपको पता होने चाहिए, आगे भी पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, टैक्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन. ऑप्शन ए, इंडिया अदर देन जम्मू एंड कश्मीर. ऑप्शन बी, इंडिया. ऑप्शन सी, अनडिवाइडेड इंडिया. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए. अ पर्सन इज डीम्ड
to be of Indian origin, he is or either of his parents or grandparents was born in. सो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, अनडिवाइडेड इंडिया. क्वेश्चन नंबर 7. Mr. Suresh born and brought up in India since 1971, left for Singapore on 10 October 2019 for purpose of employment. His residential status for 2019-20 will be option A, not ordinary residents, option B, not resident, option C, resident, and option D, none of the above. Mr. Suresh born and brought up in India since 1971, left for Singapore on 10 October 2019 for purpose of employment. His residential status for 2019-20 will be. So friends, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेसिडेंट. ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. In case of non-resident, which of the following income is not taxable in his hands? Option A, capital gain in transfer of capital assets situated in India. Option B, interest received from person resident in India in money borrowed used outside India for business. Option C, interest received from Government of India. Option D, रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर पेटेंट राइट्स यूज्ड इन इंडिया. क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, इसका आंसर कमेंट करके बताइए. इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन हिज हैंड्स. अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए. टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पे आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी. सो यहां पे सही आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन बी, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन मनी बोरोड यूज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. Automatic company has total income of 120 lakhs. The rate of surcharge is applicable on income tax would be 7%, 5%, 10%, none of the above. Right answer option A, 7%. Question number 10. Normal rate of income tax are prescribed in the Income Tax Act 1961, option B, Finance Act of current year, option C, Income Tax Rules 1962, option D, CBDT circular. Normal rate of income tax are prescribed in the. So यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनकम टैक्स एक्ट 1961. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द चार्जिंग सेक्शन फॉर इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स इज सेक्शन 53, 54, 55, 56. द चार्जिंग सेक्शन फॉर इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स इज सेक्शन. यहां पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, सेक्शन 56. क्वेश्चन नंबर 12. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन इज अलाउड टू. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑप्शन ए, अ बिजनेस एसएससी, ऑप्शन बी, एनी एसएससी, ऑप्शन सी, इंडिविजुअल और HUF ओनली, ऑप्शन डी, none of the above. Deduction under section 80G on account of donation is allowed to.
राइट आंसर ऑप्शन बी, एनी एसएससी। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इनकम टैक्स से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिले। आप हमारे और भी क्वेश्चंस और भी वीडियोस को देखिए। मैंने आपके लिए अकाउंट्स, कॉमर्स, इनकम टैक्स की और भी वीडियोस बना के दिया है आपको। सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस देखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।